से आंतरिक वीडियो सुरक्षा सबको हम लोग चलाते हैं और साथ ही साथ हम लोग इधर पे आज सबको ही मालूम है कि हम लोग इधर पे क्यों है, क्यों इकट्ठा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली सुबह में और भी इधर पे मैं सोचा था कि बदलू का फैमिली भी आएगा, मगर उसी टाइम मैं भी पूरा गिर गया, उसी टाइम में बारिश भी आ गई। इधर इतना नहीं होगा, हम लोग उस में है। तो मेरा जो अभी सब कुछ होता है परमेश्वर के हाथ में। हम लोग बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं कि आज का दिन हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर सकते थे, बट मैं जब उनको फ़ोन किया, आई डोंट नो, जैसे पास्टर का आपने भी बोल दिया ऑलरेडी कि आराधना में और गिरजा में आने से हम लोगों का आत्मिक जीवन बहुत पीछे चला जाता है। तो जो भी हो, आज पवित्र या होली ऑकेशन में, गुड फ्राइडे में हम लोग कुछ वचन से हम लोग वर्णन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये मेरा वचन नहीं है, मगर परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। अपना दिस सर्विस मुझे थोड़ा सिलीगुड़ी में भी, उधर भी चर्च में भी जाना है, उधर भी 12 बजे से 3 तक एक सर्विस हम लोग का है, उधर भी मुझे बोलना है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत हम लोग जब गैदर होता है वो क्या बोलूँ, मुझे अभी भी परमेश्वर गाइड करने के लिए और भी मुझे मदद चाहिए। तो जो भी हो, आज इधर पे के लिए मैं जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि हम लोग देखेंगे लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, उसका चैप्टर 23, सुसमाचार चैप्टर 23, 26 से मैं पढ़ना चाहता हूँ, 26 से 49। लूक चैप्टर 23 verse 26 to 49। मैं बांग्ला से যাতে পড়লাম। যিশুর কুশরোপণ ও মৃত্যু। পরে তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে একজন কুরুনীয় লোক পল্লী গ্রাম হইতে আসিতেছিল। তাহারা তাহাকে ধরিয়া তাহার কণ্ঠে ক্রুশ রাখিল, যেন সে যিশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহা বহন করে। আর অনেক লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা তাহার জন্য হাহাকার ও বিলাপ করিতেছিল। কিন্তু যিশু তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ওগো জেরুজালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিও না, বরং আপনাদের এবং আপন আপন সন্তান সন্ততির জন্য কাঁদো। কেন দেখো, এমন সময় আসিতেছে যে সময় লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রী লোকেরা যাহারা বন্ধা, যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনো দুগ্ধ দেয় নাই। সেই সময় লোকেরা পর্বতগণকে বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়ো, এবং উপপর্বতগণকে বলিবে, আমাদেরকে ঢাকিয়া রাখো। কারণ লোকেরা সরস বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষ কি না ঘটিবে। আরো দুইজন দুষ্কর্মকারী হত হইবার জন্য তাহার সঙ্গে নিত হইল। পরে মাথার কুলিক নামক স্থানে গিয়া তাহারা তথায় তাহাকে এবং সেই দুই দুষ্কর্মকারীকে ঘুষে দিল, একজনকে তার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্যজনকে বাম পার্শ্বে রাখিল। তখন যিশু কহিলেন, পিতা, ইহাদেরকে ক্ষমা করো, কেননা ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না। পরে তাহারা তার বস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া গুলিবার করিল। লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। অধ্যক্ষরাও তাহাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, ওই ব্যক্তি অন্য লোককে রক্ষা করিত, যদিও ঈশ্বরের সেই খ্রিস্ট তার মনোনীত হয়, আপনাকে রক্ষা করুক। আর সেনাগণও তাহাকে বিদ্রোহ করিল। নিকটে গিয়া তাহার কাছে অম্লরস লইয়া বসিতে লাগিল। তুমি যদি জীবিতদের রাজা হও, তবে আপনাকে রক্ষা করো। আর তাহার মুখে এই উদ্ধৃতি ছিল, এই ব্যক্তি জীবিতদের রাজা। আর যেই দুষ্কর্মকারীকে ক্রুশে টাঙানো গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি নাকি সে খ্রিস্ট, আপনাকে আমাদেরকে রক্ষা করো। কিন্তু অন্যজন উত্তর দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় করো না? তুমি তো একই দণ্ড পাইতেছ, আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাইতেছি। কারণ যাহা যাহা করিয়াছি তাহারই সমুচিত ফল পাইতেছি। কিন্তু ইনি অপকার্য কিছুই করেন নাই। পরে সে কহিল, যিশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্বৈ তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে। তখন বেলা অনুমান 6 ঘটিকা, আর 9 ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল, সূর্যের আলো রহিল না, আর মন্দিরে তিরস্কারিণী মাঝামাঝি চিয়া গেল। আর যিশু উচ্চরবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, পিতা, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি। আর এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যাহা ঘটিল তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরে গৌরব করিয়া কহিলেন,
সত্য এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন। আর যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল তাহারা যাহা যা ঘটিল তাহা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। আর তাহার পরিচিত সকলে এবং যে স্ত্রী লোকেরা তার সঙ্গে গালিল হইতে আসিয়াছিলেন তারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিতেছিলেন। बाइबल का वचन से हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा हम लोग प्रार्थना में जाए और आज इस वचन से हम लोग का परमेश्वर हम लोग को क्या बोलना चाहते हैं हम लोग देखेंगे। आइए प्रार्थना में आना जाएंगे। पवित्र पवित्र বাহিনী গণেশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে একটিবার ধন্যবাদ দিই পিতা প্রভু, যে ৬টি সপ্তাহ বিভিন্ন প্রবলেম, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট, বিভিন্ন দুর্ঘটনা, বিভিন্ন দিক থেকে রক্ষা করে আজকে এই পূর্ণ শুক্রবার, ভালো শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডেতে এই হোলি অকেশনে পিতা প্রভু তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো পিতা প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি তোমার বাইবেলে লেখা রয়েছে যেখানে ২ কি ৩ জন আমার নামে উপস্থিত হবে সেখানে তোমার পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি সেখানে বিরাজ করবে পিতা প্রভু। আজকে স্পেশালি পিতা প্রভু এই দিনটিকে আমাদের নিজ নিজ জীবনকে তোমার চরণতলে রাখছি এবং আমাকেও তোমার চরণতলে বিশেষভাবে রাখছি পিতা প্রভু। আমার নিজের চিন্তা শক্তিতে নয়, আমার নিজের শক্তি দ্বারা নয়, আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে নয়, আমার মুখ দ্বারা নয়, কিন্তু তুমি আমার মধ্যে দিয়ে কি বলতে চাও তা তুমি বলো পিতা পবিত্র ঈশ্বর। আমি নিজেকে তোমার কাছে জীবিত পবিত্র বলি রূপে উৎসর্গিত করছি পিতা প্রভু এই গুড ফ্রাইডে দিনে পিতা প্রভু। তোমার পবিত্র শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে পরিচালিত করে প্রার্থনা করবো যিশু তোমার नाम चाहे आमीन। हम लोग इधर पे देख रहे हैं कि इधर पे यीशु मसीह का क्रूस रोपण और उसका मृत्यु का संबंध इधर पे लिखा हुआ है और मैं होल चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, मगर मैं इधर से खाली 2 पद हम लोग इधर से लेंगे और मेन जो पद है 34 তখন যিশু কহিলেন 34 ভার্স हम लोग इधर से देखेंगे। তখন যিশু কহিলেন পিতৃ ইহাদেরকে ক্ষমা করো কেন ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না। मैं जब पास्टर ने मुझे बोला था उससे पहले भी आज के लिए भी और उधर पे भी मेरा अंदर में 1 मंथ पहले ही मुझे पता नहीं था कि सच में मुझे पता नहीं था कि ये वर्ड एक वर्स इधर पे लिखा हुआ है और कोई कोई जगह में ऐसा है कि वो लोग फर्स्ट बाणी या प्रथम बाणी, सेकेंड बाणी, थर्ड बाणी ऐसे करके शेयर करता है। 2 जगह में मैंने देखा है और कोई कोई इस दिन में 12 बजे से 3 बजे तक वो लोग सर्विस करता है, जैसा हम लोग का चर्च में भी ऐसा होगा। तो आज इधर से जब मैं सोच रहा था कि आज एक गुड फ्राइडे के दिन में मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, तो मुझे पता नहीं था कि ये वर्स किधर पे लिखा हुआ है। खाली ये एक वर्ड या वर्स पद मुझे अंदर में आया क्या कि पितु यादे क्षमा करो केनना इहारा की करितेছে তা জানে না। तो जब ये अंदर में मुझे आया तब इसका बाद हर दिन 1 मंथ पहले आज गुड फ्राइडे का 1 मंथ में कल रात तक मुझे हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ वचन से मुझे मैं काम में भी घर में भी कुछ ना कुछ जब मैं राइडिंग कर रहा हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ देख के मुझे फील कर रहा था कि आज तुमको ये बोलना है। लास्ट नाइट तक मुझे 1-2 बजे में भी मुझे परमेश्वर से बोल रहा था मैं क्या बोलूँ। तो इसका बाद उसी का साथ साथ और पद भी मैं जाऊँगा, वो भी मुझे पता नहीं था कि ये पद में कोई पद है। तो आज कोई भी जगह में मैं देखता हूँ कि आदमी लोग जाता है पूरा सफ़ेद कपड़ा पहन के, कोई भी ऐसा है कि वो लोग पैशन वीक मनाता है, दुख का सप्ताह मनाता है, कोई भी ऐसा है कि कोई की जगह में वो लोग आज का दिन वो निरामिष खाएगा, बिचर जो करला बोलता है वो सब खाएगा, ऐसा करके वो लोग मौन करता है, दुख मनाता है। तो मेरा मन में एक क्वेश्चन आया कि पैशन वीक या दुख का सप्ताह हम लोग किसके लिए मना रहे हैं, किसके भविष्य में हम लोग मनाते हैं। हम लोग कभी सोचेंगे कि हम लोग यीशु मसीह के लिए हम लोग मना रहे हैं, या क्योंकि ऐसा है कि सारा साल ऐसा चला गया मगर आज ही का दिन बहुत होली बिल्कुल कपड़ा पहन के बहुत फास्टिंग उपवास कर, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट आज ही का दिन क्यों एकदम दुखी मन करके बैठा हुआ है, लेकिन कोई शोक सभा में या सरल सभा में हो रहे हैं। बट इधर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि तो इहादिको क्षमा करो केन इहारा की करतेছে তা জানে না। हम लोग बहुत साल पहले, मैं बचपन से भी
ये खाली आपके लोगों के लिए नहीं, मेरा लिए भी, क्योंकि मैं क्या बोला कि परमेश्वर मुझे थोड़ा थोड़ा करके मेरा एम्प्टी, उसी टाइम में बहुत शैतान बहुत ही काम किया, बहुत कुछ भी काम किया है मेरा जीवन में। मैं ये वचन ना बोलूं या मैं ये तपस्या ना करूं, बट हर दिन मुझे कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा भर रहा था। और मैं लास्ट नाइट 1:30 बजे तक मैं जब मैं नहीं सोया, 2 बजे तक इसका बाद में सोया, और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था वचन से, आत्मिक रूप से, प्रार्थना के द्वारा कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरा मुंह से नहीं, मेरा सोचना चिंता से नहीं, परमेश्वर तू मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब मुझे ये सब वचन मैं लिख के भी इधर पे लिखा हुआ है, ये बहुत दिन से मैं लिख रहा था दूसरा कागज में, मगर कल मैं फ्रेश करके इधर पे लिखा। तो कि हम लोग गुड फ्राइडे में आए हैं, हम लोग उसको मना सारी जगह में जो लोग चर्च में इस दिन नहीं आता वो लोग भी आया है। इधर में तो उतना नहीं, मगर सब जगह में कि देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा करके, मगर वो गुड फ्राइडे उसी का उनका दिन के लिए आज ही है, आज ही खत्म। क्यों कि वो लोग उसी दिन के लिए जला के कोई शोक सभा में, मरण सभा में, या वो कोई महापुरुष मर गया, कोई ये मर गया, उन लोगों का सिटी सभा सर्वसभा मनाता है। बट यीशु मसीह कोई महापुरुष का जैसा नहीं था, वो कोई मृत महापुरुष नहीं था, वो जीवित है, आज भी वो जीवित है। ये सोचना हम लोग का चाहिए। और दुख किसके लिए, इधर पे लिखा हुआ है कि 28 पद में কিন্তু যিশু তাহাদের কহিলেন, ওগো জেরুজালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিও না, বরং আপনাদের এবং আপন আপন সন্তান সন্ততিদের জন্য কাঁদো। इसका मतलब यीशु मसीह के लिए हम लोग इधर पे आया है। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में मर गया, और इसलिए मैं दुखी है, मैं फास्टिंग है, उपवास है, शोक कर रहा है। मगर यीशु मसीह ने कार्य भी बोलता है। কিন্তু যিশু তাহাদের ভার্স 28 में लिखा हुआ है, কিন্তু যিশু তাহাদের কহিলেন, ওগো জেরুজালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিও না, বরং আপনাদের এবং নিজ নিজ সন্তান সন্ততিদের জন্য কাঁদো। 28 वर्स। इसका मतलब आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके लिए नहीं, मगर अपने अपने जीवन के लिए, अपने अपने बच्चे और बच्ची के लिए हम लोग रोए, हम लोग उसको पुकारे कि हम लोग का पाप का क्षमा अब मुझे मिल जाए। आज यही गुड फ्राइडे का असली मीनिंग है। हम लोग इधर पे आए हैं कि गुड फ्राइडे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। खाली इधर पे सारा जगह में गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो धूमधाम से। कोई जगह में इसका बाद रिफ्रेशमेंट, अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलेगा, और वो चर्च पे जाता है। मगर व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द गुड फ्राइडे? आज होल वर्ल्ड उसको भूल जा रहा है। वो सोच रहा है हम लोग यीशु मसीह के लिए हम लोग आके फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और इधर पे आके हम लोग बैठे हैं। मगर यीशु मसीह डायरेक्टली वर्स 20 पे बोल रहा है, मेरे लिए रोने का जरूरत नहीं है, मगर अपने खुद के लिए, अपने अपने संतान संतति के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम लोग रो। क्यों? यीशु मसीह को पता है। हम लोग हो सकता है हम लोग बचपन से इस वर्स को बहुत साल से हम लोग सुनते, हम लोग मैं भी सुना है इस बार, मगर कभी भी मुझे ऐसा रिवील नहीं हुआ। मेरा जीवन में कैसा ऐसा रिवील नहीं हुआ। मेरा जीवन में भी ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं सोचा इधर पे जो लिखा है कि पितो एरा की करते चाहिए कहा कि तुम क्षमा करो। हम लोग सोचते हैं उस टाइम में यीशु को जो क्रूस में लटकाया गया था, वो लोग के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि इन लोगों को क्षमा करो। मगर आज जो विश्वासी हो कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग उसको क्रिश्चियन बोलते हैं या परमेश्वर का संतान संतति बोलते हैं, हम लोग का जीवन में आज एक वचन अप्लाई होता है, एक पद अप्लाई होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जागतिक रूप से भी, अनैतिक रूप से जीवन जीते हुए हम लोग को पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, पितो यहाँ दिन के क्षमा करो, यहाँ रखी पड़े। नॉट ओनली दैट टाइम बट टुडेस कॉन्टेक्स्ट, हम लोग के जीवन में, हम लोग का लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ऐसा मसीह परिवार है, बहुत ऐसा मसीह कलीसिया है, बहुत ऐसा मसीह जन है कि बाइबल नॉलेज बहुत है, दूसरों को सिखाता है, मगर अपना जीवन में, अपना परिवार में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बहुत कुछ शैतान का काम चलता है। एक वचन में क्या बोला, मैं कभी भी दूसरों को इन्फॉर्मेट करने नहीं चाहता हूँ, मैं सब समय ये वचन मेरे लिए भी काम करता है। इसीलिए परमेश्वर मुझे रिवील कर रहा था, पूरे एक एक करके मुझे आज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो यहाँ दिन तुम्हें क्षमा करो, यहाँ की कोई कुछ चाहिए। सचमुच हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग विश्वासी परिवार में जन्म ग्रहण करके, हम लोग का जीवन के द्वारा, हम लोग का बात के द्वारा, हम लोग का मुंह का स्वभाव के द्वारा, आचरण के द्वारा हम लोग
दूसरे को हम लोग हर्ट करते हैं, दूसरे के पीछे हम लोग बैकबिटिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। ये क्या परमेश्वर की ओर से हो रहा है? ये क्या परमेश्वर चाहता है? फिर भी आज हम लोगों का जीवन के व्यवहार के लिए हर टाइम दया भिक्का वो मांग रहा है परमेश्वर का सामने। पीतो इहारा की कर दे ये लोग विश्वासी होके परमेश्वर का संतान संतति होके ये लोग क्या कर रहा है इसको पता नहीं। उस टाइम में लोग तो कालवरी क्रूस में उसको दे दिया था, उन लोगों को शायद पता नहीं था, मगर हम लोग को तो पता है। ऐसे विश्वासी होके हम लोग को पता है हम लोग बिना परमेश्वर हम लोग के लिए क्या किया। मगर हम लोग आज हो सकता है हम लोग का बीच में हम लोग का जीवन में कोई एडिक्शन है, कोई हम लोग का जीवन में कोई दुर्बलता है, कोई हम लोग का जीवन में कुछ ना कुछ नशा का चीज हम लोग का जीवन में है जो शैतान हम लोग को बांध के रखा है। शैतान नहीं दिखना दे रहा है कि परमेश्वर का आशीष हम लोग का जीवन में क्या है, परमेश्वर का ब्लेसिंग हम लोग का जीवन में क्या है, इसलिए शैतान हम लोग को दूर कर रहा है। मगर आज एक गुड फ्राइडे का दिन में हम लोग को सोचना चाहिए कि यीशु मसीह के लिए शोक या यीशु मसीह के दुख या करना करने के लिए नहीं, मगर अपना अपना जीवन के लिए, अपना अपना परिवार के लिए, अपना अपना मंडली के लिए हम लोग को रोना चाहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत दुखी हूँ आज। मेरा जब मिनिस्ट्री में मैं सोचा हम लोग आएगा, मगर बारिश भी ऐसा गिर गया है। हम लोग जो रिमोट प्लेस में रहते उधर से कम्युनिकेशन भी थोड़ा ये है, मगर अभी ये होगा तो पहले भी मानुस आ सकता था। मगर आज हम लोग का जीवन में शैतान बहुत आर्थिक शिथिलता हम लोग का जीवन में रखा है। आर्थिक शिथिलता से काम करता है कि हम लोग चर्च में ना आए, संगति में ना आए, दूर कर रहा है। और इसीलिए परमेश्वर हर टाइम हम लोग जाने ना बुझे जानबूझ के ज्ञान पापी का जैसा हम लोग पाप कर रहा है। और उस टाइम मेरा जो पिता ईश्वर वो तो पाप के लिए हम लोग को क्षमा दे दिया, इसलिए हर टाइम वो विनती कर रहा है परमेश्वर से, पिता ये लोग विश्वासी हो के, ये लोग क्रिश्चियन बोल के खुद को परिचय देने से भी ये लोग क्या कर रहा है खुद को ही पता नहीं, इन लोगों को क्षमा करो। ये जो वचन में जो बोल रहा हूं, जो इस तरह पे सुन रहा है, ये मेरा वचन नहीं है। This is the word of God from the heaven। पवित्र आत्मा के रूप से सबका हृदय में काम करे, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं भी पापी मनुष्य हूँ, मगर मुझे परमेश्वर एक माह पहले मुझे चला रहा था आज के दिन के लिए ये वचन बोल। हम लोग को सोचना चाहिए कि सचमुच ऐसे विश्वासी परिवार का फैमिली की आई बिलोंग करता हूँ। मैं जानबूझ से मैं परमेश्वर को मुझे पता है, मुझे मालूम है, मगर मेरा जीवन आज कहाँ पर है, मेरा परिवार का लाइफ कहाँ पर है, मैं किसको कोई जाने या ना जाने, मगर परमेश्वर जानता है मैं क्या कर रहा है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह से ऐसे बोल रहा है कि ये लोग क्या कर रहा है, इन लोग को पता नहीं। आज वो टाइम है, आज वो समय है। हो सकता है आज एक गुड फ्राइडे मेरा जीवन के लिए आज ही लास्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग जितना जो पाप करते हैं ना, परमेश्वर यदि चाहेगा वो इज़राइल के तरह या वो सुदम गोमोरा का जैसा, या सुदम गोमोरा का जो लोट का जो स्त्री था उसका जैसा हम लोग को नाश कर सकता है, ध्वंस कर सकता है। मगर परमेश्वर इतना धीरज क्रोधे धीर दयाते महान, वो धीरज रखता है। वो हम लोग को देखता है जो हारानो जैसा पुत्र और पुत्री एक कब मेरा पास लौटेगा, वो हम लोग के लिए वेट करता है। आज ये गुड फ्राइडे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये मेरा वचन नहीं है, मगर एक परमेश्वर का आत्मा के द्वारा बोला गया वचन है। जो कोई भी कान है, जो मेरा आवाज जिधर जिधर पर जा रहा है, जो सुन रहा है, आज ये लास्ट चेतावनी है गुड फ्राइडे के दिन में। हो सकता है कल का दिन में देखूं या ना देखूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हम लोग का जीवन वो घास का शिशिर का जैसा है, कब खत्म हो जाएगा हम लोग को पता नहीं। बहुत साल गुड फ्राइडे हम लोग के जीवन में ऐसा आया चला गया, मगर आज जो गुड फ्राइडे है हम लोग को परमेश्वर मौका दे रहा है। हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा, तुम फिर से लौट आओ, मेरे पास तुम आओ, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। मैं जब सोचता हूँ हम लोग कितना ना पाप करते हैं,
आज इसी टाइम में उसको कितना मारा गया, कितना मेरे लिए वो खून भाग के चला, इतना बड़ा क्रूस लेके जा रहा है। वो भी एक हम लोग का जैसा रक्त मांस का मानुष्य था, और डायरेक्टली ऐसा सर से उतरा ऐसा नहीं है, मगर वो खुद को तैयार किया, 40 दिन का फास्टिंग लेके खुद को पवित्र किया, सूची किया। ग्रेट एग्जाम्पल हम लोग को दिया कि हम लोग उसका रास्ता में चले। जब हम लोग के जीवन में सोचना चाहिए, बहुत सारा मसीह कलीसिया में है कि आज गुड फ्राइडे में भी बहुत सारा ऐसा परिवार है जो गुड फ्राइडे का दिन भी नहीं आता है। और यीशु मसीह खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह सारा पृथ्वी के मनुष्यों के लिए, जो कोई भी उसको विश्वास करेगा उसके लिए वो जीवन दान करेगा। जैसे पास्टर ने बोल रहा था, हम लोग का पाप के लिए वो मरा है। आज यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो इधर पे आए हैं, यीशु मसीह हम लोग के लिए जो कर गया वो कर गया है। आज मैं सोचता हूँ, आज एक गुड फ्राइडे दुख क्या, कष्ट क्या या शोक के लिए हम लोग नहीं, मगर आज ही का दिन हम लोग के लिए विक्टोरियस डे होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दान दिया बोल के मैं आज धार्मिक गणित हुआ, मैं आज राइटस में पर्सन में मैं गणित हुआ, मैं आज स्वर्गपुरी का प्रोजा में है, हेवन का जो के लिए मेरा नाम उधर पे लिखा हुआ। मेरे लिए जो पाप का जो मैं एलिजिबल था, जो मेरे जो शास्ति या मृत्यु मेरे लिए था, वो मेरे बदले में वो मृत्यु को, वो मेरे लिए शास्ति को खुद के ऊपर में ले लिया। इसलिए आज वो मौका है, आज वो समय है, क्योंकि गुड फ्राइडे बहुत हम लोग मनाएंगे, इसका बाद रेजोल्यूशन मीटिंग भी हम लोग मनाएंगे, मगर आज का दिन हम लोग को सोचना चाहिए, ठीक से सोचना चाहिए, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया। उसके लिए दुख या कष्ट या शोक के से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि मेरे मुंह से जब मैं बोलता हूँ, मेरे व्यवहार से किसी को मैं दुख पहुंचता हूँ, मेरे खराब व्यवहार से मैं जब भी करता हूँ, तब यीशु मसीह भिक्षा मांग के, दया मांग के प्रार्थना करते हैं, पिता मेरा जो विश्वासी, मेरा जो संतान संतति है, इनको तुम क्षमा करो। कि मैं जैसा बोला कि यीशु मसीह चाहने से हम लोग जो पाप करते हैं कोई नहीं देखता है, मगर मैं जानता हूँ, मैं जब पाप करता हूँ उस टाइम में मुझे नाश भी कर सकता है, सस्ते भी दे सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है, मगर वो क्रोध में भी दया से महान है। वो धीरज देता है और वेट करता है, पैशन से वेट करता है कि मेरा बेटा बेटी कब सुधर जाए, कब मेरा पास फिर से आए और मैं उसको बचाऊं, मैं उसके काम में लेके आऊं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं जब देख रहा था इजराइल लोगों के जीवन में इतना आशीष किया, मगर हम लोग का जीवन का जैसा भी वो लोग, हम लोग के जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष करता है, जाने में अनजाने में हम लोग को रक्षा करता है, मगर हम लोग भी इजराइल का जैसा ढीठ होते हैं, डिसओबीडिएंट होते हैं। जोना को इतना काम में लेके लिए बोला परमेश्वर, जोना के लिए इतना वो मछली का पेट से भी उसको रक्षा किया, फिर भी उसका जैसा हम लोग के जीवन में भी इतना हम लोग को रक्षा करता है, मगर हम लोग भी जोना के जैसा डिसओबीडिएंट होते हैं। मैं जब इधर पे देखता हूँ कि राहब वेश्या जो था प्रोस्टिट्यूट, फिर उसका बाद समरिया जो नारी भी था, फिर उसका बाद जो दाऊद था, इवन कि पीतोर तो 3 बार अस्वीकार किया था यीशु मसीह को, मगर आज एज ए विश्वासी परिवारों के विश्वासियों के हम लोग जो जाने कितना भी हम लोग अस्वीकार करते हैं परमेश्वर को, हम लोग किसी चीज में अस्वीकार करते हैं, हम लोग चर्च आने के लिए हम लोग अस्वीकार करते हैं। थोमा जो अवश्य था उसको भी परमेश्वर काम में लाया, भारत या सब जगह में वो प्रचार किए। ये सब वचन मुझे परमेश्वर एक दिन से पढ़ा, मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, मगर परमेश्वर मुझे पढ़ा बोलने के लिए, आज के दिन के लिए, बिकॉज इट इज द होली प्लेस, एक पुलपीठ है। कोई भी ऐसे करके अचानक मैं कोई डरता हूँ, मेरा हाथ पर कांपता है जब तक आता हूँ, क्योंकि ये वचन मेरे जीवन में भी काम होता है। तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? आपको इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है। आप जब पाप करते हैं फिर भी आपको देखते हुए वो दया से मान, दया से मान, आप जब पाप कर रहे हैं, आप कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मगर फिर भी वो आपको शास्ति नहीं देता है, पनिशमेंट नहीं देता है, आपको प्रेम करता है। हम
लोगों को सोचना चाहिए आज के दिन के लिए, स्पेशली गुड फ्राइडे के इस होली एकेशन में, जब मेरा ये सोचने के द्वारा, मेरा जो माइंड के द्वारा मैं जब पाप करता हूं, तब मेरे लिए मेरा यीशु मसीह वो कांटा का मुकुट उसका माथा में दिया गया है। मैं इस मन से या माइंड से कुछ खराब चीज ना करूं। जब मैं मुंह से कुछ बोलता हूं, कोई गाली देता हूं, कोई, ये मेरे लिए जीवन में भी अप्लाई होता है, कोई जैसा का चीज मैं खाता हूं, तब यीशु मसीह को वो अमलोरस निगाहें, वो तिक्त बिटर जो रस था उसका मुंह में दिया गया है, जब मेरा मुंह से कोई खराब चीज ना निकले। जब मैं हाथ के द्वारा कोई अन्याय काज करता हूँ, चोरी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो मेरा यीशु मसीह को वो हाथ में पीले गात के अंदर पे कुछ में टांग दिया। जब मेरा पाँव बाइबल में लिखा है दूतों को भी चौरों पाप करने के लिए, जब जाता हूँ पीरे बोलने से भूल होगा, गौजाल बड़ा बड़ा गजाल देकर उसका इतना निर्मल से उसका पाँव में मारा गया, जब मैं कोई पाप का जगह में ना जाऊं। और लास्टली जो है, मेरा जो हृदय पवित्र रूपी मंदिर है, वो मंदिर में जो इतना ईर्ष्या, गर्व, जेलस, एरोगेंट, इतना दूसरे का संबंध में एकदम सांप का विष का जैसे, उससे भी ज्यादा मेरा हृदय आज भर के रखा है। उसके लिए उससे पहले ही परमेश्वर को भाला भोग के इधर पे देखा गया, लास्ट वो मरा एवं जीवित। आज सचमुच हम लोग यीशु मसीह के लिए दुख या कष्ट या शोक के लिए नहीं, मगर मेरा जीवन के लिए, कि मुझ जैसा पापी के लिए ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कोई फेक इंसिडेंट नहीं है, मगर मेरा यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है। और आज भी आपको बहुत प्रेम करता है, और आज भी आपको बहुत प्यार करता है। आज हम लोग को सोचना चाहिए कि यीशु मसीह हम लोग को नाश नहीं करके हम लोग को समय दे रहा है। This is the precious opportunity, precious time, क्योंकि आने वाले दिन में हम लोग किसी को वर्शिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेगोल भी शुरू हो गया है। आज सोचना चाहिए कि आज जो वचन मुझे मिला, आफ्टर इस वचन के बाद भी मेरा जीवन वैसे ही रहेगा या यीशु मसीह का पास आएगा। आज वो टाइम है कि मेरे जीवन को मैं जीवित, पवित्र रूप में जीवित, होली एवं पवित्र रूप में मैं उसका ऊपर में सब कुछ, मेरा चिंता, मेरा सोचना, मेरा एटीट्यूड, मेरा सब कुछ उसके हाथ, मेरा सब कुछ, इतना दिन से मैं जो पाप करके आया है, सब कुछ उसका पाव का क्रूस के ऊपर में मैं रख दूं। क्योंकि उसको जितना टॉर्चर, अत्याचार किया, जितना निर्मम से उसको मारा गया, चाबुक देके मारा गया, वो मेरे लिए खोतो बिखत हुआ, वो मेरे लिए इतना रक्त बहा के मुझको उसका प्रेशियस ब्लड से उसको मुझे परचेस किया। ये मुझे बोलना ही चाहिए। अच्छा, जितना जन हम लोग इधर पे बैठे हैं, हम लोग को इस गुड फ्राइडे अपने आप को टोटली सरेंडर करके उसका हाथ में लेना चाहिए। जितना शैतान मेरा हृदय में ठीक बन के बैठा हुआ है, जैसा बोला, मेरा हृदय में जो था पाप, हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर बोला गया था, बाइबल में लिखा है, वो उसके लिए वो उसका जो भाला उसको दुखी देश में उसको उसके हृदय में घुसाया है। और सोच के सब कुछ मेरा हृदय से जितना बुरा बात, जितना कुछ मेरा है जीवन से, गर्व, एरोगेंट, जेलसी, जो बहुत कुछ है हम लोग का जीवन में, सब कुछ निकाल के, सब चिंता भावना, सब कुछ हाथ में उसको देना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे परिश्रांत भाराक्रांत लोक सकल আমার নিকট আইসো, cast your all the burdens. Today is the precious time, precious day. I don't know कि मेरा जीवन भी आने वाले एक गुफारे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कितना भी इस संसार में जीवित रहेंगे, हम लोग खुद को हम लोग को पता नहीं है। तो
इट्स माय मेरी रिक्वेस्ट, परमेश्वर को के लिए रोना से ज्यादा परमेश्वर का काम को अपना जीवन में देखिए, वो क्या किया किया ना किया आपका जीवन में कर रहा है। आज एक एक जन हम लोग जो बैठा है, सबका हृदय में परमेश्वर बोल रहा है, कम बैक माय डॉटर, कम माय सन, कम बैक। This is the real time. This is the precious time to submit your own self into the mighty hand of Lord Jesus Christ. मैं अपने आप को खुद को उसके हाथ में दे रहा हूँ। जब क्योंकि दिस इज नॉट ए लाइक ए परंपरागत में हम लोग गुड फ्राइडे आएंगे, बहुत सारा में दुख होता है मेरा, बहुत जगह में आज फर्स्ट बानी, सेकंड बानी, थर्ड बानी, चतुर्थ बानी, षष्ठ में भी कंफ्यूज कौन सा बानी क्या है। आज अपने आप को, हृदय को परमेश्वर को के लिए खोल दीजिए कि परमेश्वर नहीं बोले, हे पिता, आफ्टर दिस गुड फ्राइडे, हे पिता, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग नहीं जानते इसको। इफ वी आर सरेंडर आवर ओन सेल्फ एवरीथिंग, परमेश्वर मेरे जीवन में एक होली ओकेजन को शुरू करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में हम लोग अपने आप को सबमिट करें। इफ यू नील डाउन, आप नील डाउन भी कर सकते हैं, या आप अभी खड़ा होकर खड़ा भी हो सकते हैं। अपने आप को मत रोक के इस होली ओकेजन को हम लोग ले लें, प्रीशियस अपॉर्चुनिटी से ले लें, फिर से रिन्यू योर स्ट्रेंथ, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है। यस, गॉड नोस वी आर वीक। हम लोग का जीवन बहुत वीक पॉइंट हो सकता है, हम लोग का जीवन बहुत एडिशन हो सकता है, हम लोग का जीवन में वो मुझे पता है मेरे जीवन में क्या वीक पॉइंट है। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना में हम लोग हाथ में अपने अपने जीवन को उसके हाथ में, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र भानेगर पिता पवित्र ईश्वर, তুমি মহান ঈশ্বর পিতা প্রভু যিশু, তুমি আরেকটি বাপ পিতা পবিত্র ঈশ্বর, তুমি আমাদেরকে স্মরণ করে তোমার সে পবিত্র আত্মার রক্ত পিতা প্রভু, তুমি আমাদের জন্য তুমি হয়েছো পিতা প্রভু, তুমি কত বিক্ষত করেছো, কিন্তু আমরা সে অভাগা মনুষ্য, আমরা দুর্বল মনুষ্য পিতা পবিত্র ঈশ্বর, আমরা ভুলে যাই তোমার সে খুশি রক্তকে পিতা প্রভু, তোমার জ্ঞানকে পিতা প্রভু, যা তুমি আমাদের জন্য দিয়েছো পিতা প্রভু। তুমি